Hello, all, and welcome to this week's legal updates. Now, this is from CLAT Point, and we'll be covering from September 12 to September 18 of what important has been done in the courts of India. We'll start with the first case of the week, which is Rashidul Jafar alias Chotu versus State of UP. Now, this had a bench of two judges, Justice Chandrachud and Justice Hema Kohli. Now, what was the question? The question in this case was actually the remission policy of Uttar Pradesh of with related to life convicts. Now, earlier the condition was that they'll be considered people who have been, subjected to life conviction. They will be considered for remission only after they are 60 years of age. Later, the condition was deleted by the state. Now, it was challenged. So, what the court talked about was mainly that how the policies, the remission policy of every state is different, and people are not very aware of what the remission policy is. Also, when if the states will keep on changing their remission policies, amending their remission policies so often, then it would be really hard for the prisoners to keep a tap on the same, right? So the court addressed the problem of lack of awareness about remission policy, because of which the large numbers of prisoners are languishing in jail. They can have their remission, but because they are not aware of it, they are not asking for it. उनको पता ही नहीं है कि एक remission policy है in place, and वो लोग उसके अंडर actually अपना remission करवा सकते हैं. तो इसीलिए वो लोग जेल में हैं, इंस्टेड वो लोग छूट सकते हैं. The court directed that the authorities may not wait for prisoners to apply for remission and must consider the cases of eligible themselves. अब कोर्ट ने ये कहा कि जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको रेमिशन करवाना होता है, करना होता है, उनको ये वेट नहीं करना चाहिए कि प्रिजनर एप्लीकेशन डाले इस चीज़ के लिए. उन्हें खुद कंसिडर कर लेना चाहिए कि अगर 14 ईयर्स हो गए हैं किसी को, तो आप खुद देखिए कि क्या इस इंसान को रेमिट कर दिया जाए. सिमिलरली, अगर हर स्टेट की पॉलिसी अलग है, तो उस स्टेट के हिसाब से जितने भी प्रिजनर्स उस रेमिशन पॉलिसी के अंडर फॉल कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को खुद देखना चाहिए. तो जो ओनस है इसका, वो कोर्ट शिफ्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ पे, ना कि प्रिजनर्स पे. Now, what did the court say? The implementation of the policy for premature release has to be carried out in an objective and transparent manner, as otherwise it would impinge on the constitutional guarantees under Article 14 and 21. तो कोर्ट ने ये कहा कि जो रेमिशन पॉलिसी है, जो प्री मेच्योर रिलीज की पॉलिसी है, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और ये पूरा जो रिलीज़ है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली कैरी होना चाहिए. समझ में आना चाहिए कि किसी इंसान को क्यों रिलीज़ किया गया है, किसी इंसान को रेमिशन पॉलिसी के अंडर क्यों रिलीज़ किया गया है. नहीं, अगर ऐसा हुआ तो 14 और 21 हैम्पर होंगे, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते. Many of these life convicts who have suffered long years of incarnation have few or no resources. ज़्यादातर जो लाइफ कन्विक्शन में लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं उसको, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हैं. Lack of literacy, education and social support structures impede their right to access legal remedies. ज़्यादातर वो लोग लिटरेसी की कमी होती है, एजुकेशन नहीं होती है, सोशल सपोर्ट नहीं होता है उनके पास, जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके पास रेमिशन पॉलिसी है, जिसकी वजह से उनके पास लीगल रेमिडीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते. रेमिडी है उनके पास रेमिशन की, बट वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में. Once the state has formulated its policy defining the terms for premature release, due consideration in terms of policy must be given to all eligible convicts. एक बार स्टेट अपनी पॉलिसी को फ्रेम कर लेता है तो उसे कंसिडर करना चाहिए है हर उस प्रिजनर को जो उसके अंडर फॉल कर रहा है. The constitutional guarantees against arbitrary treatment and of the right to secure life and personal liberty must not be foreclosed by an unfair process of considering applications for premature release in terms of policy. तो कोर्ट क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है अगेंस्ट आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट, और हम लोग के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि लाइफ और लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा. अनफेयर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन से इन दो चीज़ों को हम लोग को ख़त्म नहीं करना चाहिए. बहुत ध्यान रखना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि वो आर्बिट्ररी नहीं हो रही हैं,
while releasing people. Now the second case is Vinod Katara versus State of Uttar Pradesh. इसमें बेंच थी अगेन, 2 जजेस बेंच, जस्टिस महेश्वरी एंड जस्टिस परदीवाला. अब इस केस में फैक्ट्स क्या थे? एक इंसान था जिसको इम्प्रिजनमेंट हो चुका था, उसे पनिशमेंट मिल चुका था, ठीक है, लेकिन उसने ये चैलेंज किया था कि जिस दिन उसने वो ऑफेंस कमिट किया था, द डे ऑन विच ही कमिटेड द ऑफेंस, ही वॉज अ जुवेनाइल. वो एक जुवेनाइल था, राइट? ही वॉज अंडर द एज ऑफ 18 इज वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से. नाउ ही सेड कि जिस डेट पे हमने ऑफेंस किया था, आई वॉज 15 ईयर्स. इसलिए अगर हम जुवेनाइल थे तो हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर हमारा सारा जो भी सेंटेंसेस थे और जो पनिशमेंट थे वो कैरी होना चाहिए, विच इज़ मच लेसर इन ग्रेविटी. जब ही हुआ क्या कि उसको एडल्ट प्रिजन में भेजा गया, उसे जे एक्ट के अंडर ना ट्राई करके उसे CRPC और जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंडर उसको ट्राई किया गया, नॉट अंडर जे एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट है जुवेनाइल्स के लिए, राइट? अब क्या हुआ कि इसलिए कोर्ट ने उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट या कोई भी ऐसा टेस्ट, कोर्ट ने कहा जो अभी मेडिकल फील्ड में नया है, जो भी लेटेस्ट है, जिससे हम डिटरमाइन कर पाएँ एज, आप वो टेस्ट करवाइए. उसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इन व्यू ऑफ सेक्शन 7A ऑफ 2000 एक्ट, बेसिकली जे एक्ट की बात हो रही है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000, refer to herein above, applicable to the writ applicant herein, the plea of juvenility should be raised in any court at any stage, even after final disposal of special leave petition under Article 136 of the Constitution. This is very important. कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी को ये डाउट है कि जिस टाइम पे ऑफेंस कमिट हुआ वो इंसान जुवेनाइल था, ये बात, ये जो प्ली है उसकी जुवेनिलिटी की, वो कभी भी रेज कर सकता है, किसी भी कोर्ट में रेज कर सकता है, किसी भी स्टेज पे, बेसिकली ट्रायल पे, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में, कभी भी, एंड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे, बेल की स्टेज पे, ट्रायल ख़त्म हो गया उस स्टेज पे, जब अपील पे हो उस स्टेज पे, यहाँ तक कि स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की गई, स्पेशल लीव पेटिशन डिसाइड हो गई और उसके बाद भी आप इस प्ली को रेज कर सकते हो. In the case of writ applicant herein, the special leave petition had also been dismissed by the court. इस केस में जो special leave petition थी वो भी फाइल हो चुकी थी और वो भी dismiss हो चुकी थी. However, this court is still obliged to consider the plea of juvenility taken by the writ applicant and grant him appropriate relief. उसके बाद भी, even though SLP उसने फाइल की, वो dismiss हो गई, उसके बाद भी अगर वो ये claim कर रहा है कि वो juvenile था, तो भी कोर्ट उसको consider करेगा और उसको relief देगा. The fact that the 2000 Act, JJ Act of 2000 basically, has been replaced by JJ Act of 2015 makes no difference at all, क्योंकि उस इंसान पे तो JJ Act of 2000 ही अप्लाई होगा. उसके बाद कोर्ट ने फर्दर क्या बोला कि while appreciating the evidence adduced on behalf of the accused in support of plea that he is a juvenile, if two views are possible on the same evidence, अगर एक ही evidence पे दो views possible हैं, एक ये व्यू है कि वो जुवेनाइल है, एक ये व्यू है कि वो जुवेनाइल नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट को क्या करना होगा? द कोर्ट शुड लीन इन फेवर ऑफ होल्डिंग द अक्यूज टू बी जुवेनाइल इन द बॉर्डरलाइन केसेस. जहां पे भी कंफ्यूजन आएगा कि अक्यूज जुवेनाइल था कि नहीं था, वो क्या कंसिडर किया जाएगा? जुवेनाइल ही कंसिडर किया जाएगा. द इंक्वायरी कॉन्टेम्पलेटेड इज नॉट अ रोवरिंग इंक्वायरी. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई रोविंग इंक्वायरी करनी हो इस बारे में. The court can accept as evidence something that is more than an affidavit, that is document, certificate, etc. ये प्रूव करने के लिए कि वो जुवेनाइल था कि नहीं, कोर्ट को कोई बहुत लंबी चौड़ी इंक्वायरी नहीं करनी है. कोई भी डॉक्यूमेंट जो एफिडेविट से ज़्यादा हो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड नहीं हो, कुछ और डॉक्यूमेंट हो या कोई सर्टिफिकेट हो जहाँ पे ये प्रूव हो रहा हो कि ही वॉज जुवेनाइल, वो हम लोग मान लेंगे. A mere opinion by a person as to the accused looking 1 or 2 years older than the age claimed by him, as here it was about the headmaster in this particular case, or the fact that the accused told his age to be more than what he alleges in the case while being arrested by the police officer would not hold much water. इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी ने कहा कि लगता तो था कि 18-20 बरस का होगा या 16-20 बरस का होगा. ये चीज़ मैटर नहीं करती है.
You cannot go on saying that somebody looked a certain age or looked a certain age younger or a certain age elder. इस पे आप नहीं जाएंगे, ना ही आप इस चीज़ से इस पे फर्क पड़ता है कि उस इंसान ने खुद क्या कहा कि हाउ मेनी ईयर्स वाज ही एट दैट पॉइंट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It is a documentary evidence placed on record that plays a major role in determining the age of juvenile. जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लेस किया जाएगा वो है जो मेजर रोल प्ले करेगा टू डिटरमाइन कि उस इंसान की क्या एज है. The juvenile in conflict of law, and it is only in the cases where documents or certificates placed on the record by the accused in support of his claim of juvenility are found to be fabricated or manipulated that the court, the juvenile justice board or committee need to go for medical test for age determination. तो जो एज डिटर्मिनेशन के टेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हुआ द ऑसिफिकेशन टेस्ट. अब वो जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो कभी भी पहला स्टेप नहीं हो सकता. आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा, वो क्लियर नहीं है या वो मौजूद नहीं है. उसके बाद जो वो इंसान क्लेम कर रहा है अपना जुवेनाइल होना, वो जो जिन डॉक्यूमेंट्स को दे रहा है वो फैब्रिकेटेड हैं या वो मैनिपुलेटेड हैं. तो कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ भाई, यू नीड टू गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट टू डिटरमाइन योर एज. So this is what the court has said in this case about the whole issue of age on the date of commission of the offence. Now we move on to the next important case for the week, which is Vishwanath Pratap Singh versus the Election Commission of India. अब इसमें क्या हुआ था? It's fairly an interesting case. Bench थी 3 judges bench, Justice Sanjay Kishan Kaul, Sanjay Abhay Oka and Justice Vikram Nath. अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो पेटिशनर थे मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दिल्ली हाई कोर्ट भी जा चुके थे अपनी सेम प्ली के साथ. उन्होंने ये कहा था कि एक नोटिफिकेशन निकाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से हम अपने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं फाइल कर पा रहे हैं फॉर द सीट ऑफ राज्यसभा. अब जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया तो उनकी जो पेटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई क्योंकि द कोर्ट डिड नॉट अग्री विद एनी ऑफ हिज कंटेंशंस. बट ही वाज फेयरली कॉन्फिडेंट अ मैन. ही स्टिल वेंट ऑन एंड फाइल्ड एन SLP इन द सुप्रीम कोर्ट. वहाँ पे कोर्ट ने फिर से उनकी जो SLP थी वो डिसमिस की और इस बार फाइन इम्पोज किया ऑफ 1 लाख रुपीज़. और कोर्ट ने कहा कि राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन is neither a fundamental right nor a common law right. ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप इलेक्शन को कंटेस्ट करो. ये आपका सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट है. कोई स्टैट्यूट आपको ये राइट देता है कि अगर आप ये चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरियाज, तो आप किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं. इस केस में इस बात को कहते हुए कोर्ट ने वही बात दोहराई जो कि जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ऑलरेडी बोली जा चुकी थी. विच वॉज वॉट द कोर्ट सेड इन जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट. दिस कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉमन लॉ राइट. इट वॉज अ राइट conferred by a statute. At the most, in view of Part 9 having been added in the Constitution, a right to contest election for an office in Panchayat may be said to be a constitutional right, a right originating in the Constitution and given shape by a statute. तो कोर्ट ने ये कहा कि कंटेस्ट करना इलेक्शन फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉमन लॉ राइट भी नहीं है. वो क्या राइट है? एक स्टैट्यूटरी राइट है जो एक स्टैट्यूट आप पे कन्फर करता है. ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि पंचायत इलेक्शंस में खड़े होने का जो राइट है वो Part 9 उसकी बात करता है. Part 9 उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है, लेकिन वो भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो फर्दर एक स्टैट्यूट उसको शेप करेगा. बट इवन सो इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ फंडामेंटल राइट. उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो फंडामेंटल राइट हो गया. There is nothing wrong in the same statute which confers the right to contest an election also to provide for necessary qualifications without which a person cannot confer his candidature for an elective office, and also to provide for disqualifications which would disable a person from contesting for or holding an elective statutory office. तो कोर्ट ने क्या बोला था इसमें कि अगर कोई स्टैट्यूट आपको ये राइट दे रहा है कि हाँ, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो यू कैन स्टैंड इन एन इलेक्शन. दूसरे हाथ पे वो ये भी कह रहा है कि अगर ये चीज़ें हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस केस
which we are talking about here also, Rajballa versus state of Haryana, Javed versus state of Haryana. क्या हुआ था एक बार कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया निकाला गया था हरियाणा में कि एनीबडी हु हैज़ मोर देन टू चिल्ड्रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द लिमिट, कि अगर आपके दो से ज़्यादा यू हैव चिल्ड्रन देन यू कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शंस। ये डिस्क्वालिफिकेशन बनाया गया था। तो इवन अगर आपकी सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल हो रही हैं और ये एक प्रॉब्लम है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका केस किया गया था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। ये बोला गया कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और कोई भी स्टैचूट आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी गाइडलाइंस दे सकता है, विच इज़ वाई उन पे ये फाइन इम्पोज किया गया, बिकॉज दैट इज समथिंग विच हैज़ बीन very clearly stated by the court over and over again. Now comes another case, Shanavi Ponuswamy versus Ministry of Civil Aviation. I'm sorry for the pronunciation again. Now bench क्या थी? Division bench थी, Justice अजय रस्तोगी and Justice नागराथन. अब इसमें क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाली। उस एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को जो हाई कोर्ट है उसने ये बोला कि वी विल हियर, एडमिट कर ली वो बेल एप्लीकेशन, और फिर ये बोला कि वी विल हियर इट इन ड्यू कोर्स। कोई टाइम नहीं दिया उसका, कोई पर्टिकुलर टाइम डेट, नथिंग, कुछ नहीं दिया कि भाई योर नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन दिस डेट और आफ्टर 1 वीक द कोर्ट विल हियर यू, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि द कोर्ट विल हियर यू इन ड्यू कोर्स, विच इज़ एक्सट्रीमली वेग एंड आर्बिट्ररी। तो यही बात चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऑर्डिनरीली दिस कोर्ट वेयर देयर इज़ अ रिफ्यूजल टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ इज़ नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर। तो जहाँ पे भी कोई इंटरिम रिलीफ मांगी जाती है, अब एंटिसिपेटरी बेल इज़ एन इंटरिम रिलीफ, तो अगर कोई इंटरिम रिलीफ को कोई भी कोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। बट दिस इज़ समवॉट पेक्यूलियर फैक्ट्स, बट ये बहुत ही पेक्यूलियर है, brought to the notice of this court, where the applicant who approached for seeking anticipatory bail, the learned judge of the High Court, while admitting the bail petition, dismissed the interim relief and posted the matter for hearing in due course. This is an unusual practice and which this court has never come across. We also disapprove such practice and request the Chief Justice of the High Court to take a judicial note and at least the bail applications where it is a pre-arrest application or post-arrest application, यानी anticipatory bail या regular bail, must be decided as expeditiously as possible. तो कोर्ट ने ये कहा कि इस बात का जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, उन्हें जुडिशल नोट लेना चाहिए। ये जो प्रैक्टिस की है उन्होंने इन ड्यू कोर्स की, ये डिसअप्रूव करते हैं हम लोग। और कोई भी बेल एप्लीकेशन, चाहे एंटिसिपेटरी बेल की हो, प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट, कोई भी बेल एप्लीकेशन को एक्सपेडिशियसली सुना जाए। ये नहीं कहा जाए कि हम इन ड्यू कोर्स सुनेंगे जब दिल चाहेगा। Although we are not supposed to give any guidelines for disposal of the bail application, but at the same time we always expect that bail applications must be decided as expeditiously as possible and not to be posted in due course of time. आप जल्दी से जल्दी bail application सुनेंगे and you will not post it in due course of time. Now comes another case, Sunadar versus State of Chhattisgarh. Again, division bench, Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice Abhay Srinivas Oka. इसमें क्या हुआ? Basically again हम लोग ने इसमें bail की बात की, तो कोर्ट ने बोला कि we can appreciate if any of the party is delaying the bail itself, but short of that we are of the view that all persons who have completed 10 years of sentence and appeal is not in near proximity of hearing with no extenuating circumstances should be enlarged on bail. कोर्ट ने कहा कि until and unless वो जो पार्टी खुद है वो डिले कर रही है बेल एप्लीकेशन को, अगर ये है कि पार्टी खुद बेल एप्लीकेशन डिले कर रही है तो अलग बात है। इसके अलावा एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस, अगर किसी इंसान ने 10 years ऑफ सेंटेंस पूरे कर लिए हैं एंड अपील इज नॉट इवन अपियरिंग टू बी नियर, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि उसने जो अपील डाली है वो सुनने के लिए हाल फिलहाल में सुनी जानी है, तो ऐसे में उस इंसान को बेल दे देनी चाहिए। The court further said, first,
convicts have undergone more than 10 years imprisonment unless there are reasons to deny or to grant bail be granted bail. जिसने भी 10 इयर्स की जो कन्विक्ट हैं उन्होंने 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट कर लिया और उनकी अपील नहीं सुनी गई है अभी तक, तो उनको बेल दे दी जाए अनलेस देयर इज अ रीज़न कि उनको बेल ना दी जाए, कोई भी ग्रेव रीज़न हो. Second, identification of cases where convicts have completed 14 years of custody, in which event a case can be referred to the government for considering premature release within a fixed time, irrespective of whether appeals are pending or not. और अगर किसी ने 14 years कस्टडी में पूरे कर लिए हैं तो फिर जो केस है उसको प्रीमेच्योर रिलीज के लिए भेजा जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उस इंसान ने अपील की है कि नहीं की है. We have to keep in mind the objective of decluttering jails. हम लोग को jails से लोगों को कम करना है. Where without hearing of appeals, convicts are in custody. जहाँ पे बिना अपील सुने लोग जो है वो custody में हैं. The aforesaid exercise has to be undertaken on urgent basis so that the scenario should not prevail where the convict completes the minimum sentence for consideration of remission. तो अगर रेमिशन की कंप्लीशन के जो मिनिमम ईयर्स हैं उन्होंने वो पूरे कर लिए हैं तो उनका जो बेल का है या प्री रिलीज है वो सब हो जाना चाहिए. That necessity has arisen only on account of fact that the appeals not taken up for hearing. अगर अपील हियरिंग में है तो फिर ये सब कंडीशंस अप्लाई नहीं करती, लेकिन अगर अपील हियरिंग में है ही नहीं और आने भी नहीं वाली है इन द नियर फ्यूचर तो फिर उस इंसान को प्रीमेच्योर रिलीज के लिए या अगर 10 years हो गए तो बेल के लिए कंसिडर करना होगा. So that's all for this week and see you for the next week. Till then, keep learning and please call us, subscribe to our channel, and we will help you as much as we can. Thank you so much and have a great week. Bye bye.